तो दोस्तों ये पार्ट 4 है। ये पार्ट 5 सॉरी ध्यान नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना लेसन। हिस्ट्री का है, एफ वाई बी ए हिस्ट्री। तो डिकेन रेशियो कमीशन, तो सून इट बिकम अ क्लियर, हमने पिछला यहाँ पे ख़त्म किया था जब वो होनिया को पकड़ा गया था। तो यहाँ पे है डिकेन रेटो commission. Soon it became clear that the raid against the money leader was not just a problem of law and order. The problem was rooted in the miraculous exploitation of the peasantry. Hence, the government appointed the commission to inquire the case of the ratier. The Deccan Ratio Commission found that the inhabitants of a prestige had grown an extreme level. Their inquiry showed that only one third of the land was retained by the cultivator. मतलब अब ये लोग ने क्या कर दिया कि वो लोग का झगड़ा भर रहा है ना, तो अब ये लोग ने कर दिया कि तुम एक ज़मीन का एक तिहाई हिस्सा ही रिटेन कर सकते हो, रिटेन बाय द कल्टिवेटर। रेस्ट ऑफ द लैंड वॉज द कॉन्फिकेटेड बाय द मनी लैंडर। अब बाकी की जो ज़मीन रहेगी उसका उसमें हक किसका रहेगा? मनी लैंडर्स का। लेकिन ज़मीन का एक तिहाई हिस्सा ही तुम लोग ले सकते हो। ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक छोटा सा पॉलिसी बनाया। पॉलिसी नहीं, उसे एक तरह से जाल बोला जाता है। द इंटरेस्ट of the debate was so high that the debate was nearly due than the capital value of the debate. Commission came to conclusion that fill the betterments or hatred toward the moneylenders was due to explosion of the payment. By studying of the all factor founded by commission, British government passed the Deccan Agriculture Relief Act of 1879 to provide financial referral to the peasant. 1879 में ब्रिटिश ने कौन सी पॉलिसी पास की? तो उसका पॉलिसी का नाम था डिकैन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट। सॉरी, पॉलिसी नहीं, एक्ट। तो ये वाली छोटी सी भी यहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म। यहाँ पे आता है 90.5 90.4 के हमारे 5 पॉइंट अलग से। तो स्टार्ट करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ रिफॉर्मर्स टूवर्ड द पेशेंट मूवमेंट। महात्मा ज्योतिराव फुले। Mahatma Jyotirao Phule was the symbol of revolts against all oppressed classes in India. He had dedicated his entire life in the service of neglected and exploited classes. Jyotirao dedicated to create awareness among to farmers to study the problem of a farmer. He traveled on foot through many villages and went place to place. He held a meeting to the farmer to create on awareness among the. He explored to them the idea how to improve agriculture production through his writing. He brought to the notice of a general public. He द रिएबल कंडीशन ऑफ द विच फार्मर लिव्ड। इसने जो सॉरी महात्मा ज्योतिराव फुले जी जो थे वो जगह इंडिया के सबसे नीची जातों में से थे और उन्हें रिवॉल्ट अगेंस्ट उन्हें सिंबल माना जाता था ऑप्रेस क्लासेस जो बड़ी ऊंची कास्ट है जो उनके अगेंस्ट खड़े होने में। और ये अपने कदम में चल चल के बहुत सारे विलेज में गए, बहुत सारे फार्मर से मीटिंग की, उनको बताया कि आप कैसे क्या कितने फार्मिंग कर सकते हो, कैसे प्रोडक्शन कर सकते हो। तो वो सब अपनी फार्मिंग लाइफ के लिए, फार्मिंग के सपोर्ट के लिए खड़े थे। He shed light on the exploitation of a farmer by revealing department policy office and irrigation authority like Tatley, Kunkarni and Mum Leader. Mum Leader. In the year 1855, the moneylender had landlords near Juneira were founded to the the farmer harassing the farmer with the high rate of interest. The farmer filled the petition with about 5,000 signature and sent it the government. मतलब वो लोग ने एक ऐसे को पकड़ा जो बंदा
आज भी मतलब वो पॉलिसी गवर्नमेंट ने जब बंद करती थी कि भाई चलो, जब बोलते हैं ना, जब कुछ अच्छे लोग आते हैं तो कुछ अच्छा करके जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि 100 बुरे हैं तो उसमें से 100 बुरे रहेंगे, 5 तो अच्छे रहेंगे। तो उन्होंने जब पॉलिसी निकाली थी तब भी एक मनी लैंडर था जो हाई इंटरेस्ट मांग रहा था। तो सब फार्मर्स ने मिलकर कितने 5,000 5,000 signature करके sent to government. Jonitho went and Junior and actively participate the movement. He explained the mercy of the farmer to the government and the end of the moneylender and landlords. Moneylender and landlord decided to reduce the rate of interest. The farmer again went to work. मतलब अभी ये लोग ने क्या बोला कि अभी फार्मर लोग को आराम नहीं करने देना है। किसने? मनी लैंडर एंड लैंड होल्डर ने। वो लोग ने प्लान क्या पढ़ा कि अब इंटरेस्ट का रेट हम लोग और बढ़ा देंगे, तो फार्मर सब घर पे बैठेंगे नहीं, वापस जाएंगे वो लोग किधर? काम करने। हमसे झगड़ा करने आएंगे नहीं, आंदोलन करेंगे ही नहीं, वापस काम करने जाएंगे। ज्योतिराव ऑल्सो एक्सपोर्ट द एक्सप्लोटेशन नेचर ऑफ Brahmanism, which lead to exploitation of a Peshwant. He wrote a book and entitled Cultivator Vic Vip Proct. तो बुक का नाम क्या था जो ज्योतिराव जी ने लिखा था? कल्टिवेटर्स विप प्रॉक्ट। प्रॉक्ट की स्पेलिंग है PCORD, in which he nurtured the sparrow of the cultivator. He came to consolidate that an instant moral programs and wealth vanished due to lack of education, so he encouraged the peasant to the take education. The book was written with the view to discuss some of these reasons behind the problem of peasant. According to Jyoti Rao, all white European officially and upspread in the individual in the pressure, and all government department have a majority of Brahman official. These people are nothing to do with the problem of this patient. अभी इन्होंने एक बुक लिखा और उसमें डिमांड किया कि जो ब्राह्मण समाज है उसमें हमें ज्वाइन करो या फिर हमें भी एजुकेशन दो। और उन्होंने कहा दिस पीपल हैड नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ फी पेशवर। ज्योतिराव एस्टैब्लिश सत्यशोधक समाज। ज्योतिराव जी ने सत्यशोधक समाज बनाया टू फ्री द एक्सप्लोर्ड एलिमेंट ऑफ इन द सोसाइटी लाइक पेशवंट, शुद्ध श्रद्धा and women. सत्यशोधक समाज started weekly journally. दीनबंधु कृष्णराव बालकरे become the editor in the chief of दीनबंधु। मतलब दीनबंधु के जो एडिटर थे कौन? चीफ कृष्णराव बालेकर। द प्रॉब्लम ऑफ द पेशवेंट वेर हाईलाइटेड in Deenbandhu. Jyotirao Phule made a demand to the government regarding establishment of hostel for the children of a patient. He also made appeal to government fix responsibility assignment of the land and free farmer from encourage and suppression. He arrested the sparrow of the patient due to the Duke can catch when he visit in पुणे 1888। इन्होंने ये सब डिमांड की गवर्नमेंट से कि जो पेशवेंट वाली जाति है उसमें सत्यशोधक समाज सत्यशोधक समाज को स्टैब्लिश ज्योतिराव फुले ने जी ने किया था। और इनमें वुमेन्स दीन पेशवेंट श्रद्धा ये लोग के मतलब थे। और उनका टाइटल था दीनबंधु। दीनबंधु के जो चीफ एडिटर थे वो थे कृष्णराव बालेंकर और चीफ एडिटर थे। और इन्होंने ज्योतिराव जी फुले जी ने डिमांड की थी गवर्नमेंट से कि आप हॉस्टल बनाएं और पेशवेंट के चिल्ड्रन बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, और एक गवर्नमेंट फिक्स रिजनेबल असाइनमेंट करें लैंड के ऊपर और फार्मर्स को फ्री करें। तो ये सब डिमांड करने के बाद जब वो पुणे आए थे 1888 में तो उनको अरेस्टेड किया गया था।
Vittal Ramaji Shinde and a Peshwant problem. Vittal Ramaji Shinde, on the great social reformer of Maharashtra, was born in peasant family. जो विट्ठल रामाजी शिंदे हैं वो एक सबसे बेस्ट सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के, जो बॉर्न हुए थे एक पेशेंट फैमिली में, एक नीची कास्ट में. हिज फैमिली सफर्ड मैरिजेस एट द हैंड ऑफ मनी लैंडर्स. और इनकी जो फैमिली थी वो किस में भी थी, वही मनी लैंडर की पॉलिसी में. मतलब उनके दादाजी ने लोन लिया, वो मरते मरते चले गए, उनके बेटे ने भी लोन बिचाते बिताते मर गया, अब उनके बेटे के ऊपर आया, तो उनकी फैमिली उनके हाथ में थी. द पेशवांत मूवमेंट एट 1920 में इन वेस्टर्न महाराष्ट्र वॉज अ चाइल्ड एंड अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट ऑफ अ सत्यशोधक मूवमेंट. सत्यशोधक मूवमेंट में दो मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे, जो कि चाइल्ड ऑफ अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, नहीं सॉरी, एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और मूवमेंट का नाम था नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, जो कि हम लोग नहीं, ऊपर कास्ट के नहीं हैं. इन 1928 an event, the calamity of a small holding bill, Shinde came forward to amuse the leadership of the case of the Peshwant in the cultural movement. The bill created and get unrest among the farmers. When the Peshwant were properly reduced in the Bombay Presidency, Peshwant Conference was held by Ray Market in Pune with V.R. Shinde, and the President Shinde synchronized the Indian Ministry of the Government. He pointed out that the corporate officer clerk clerk and the moneylender have deprived the पेशवेंट ऑफ हिज लैंड. जब वो कुछ पेशवेंट लोग ने अपनी गैंग बनाई, जो मूवमेंट था, तो उसमें उन्होंने लीडर के लिए सबसे पहले खड़े हुए, और लीडर बनने के बाद जब वो मतलब एक मीटिंग हुई बड़े बड़े लोगों की, तब उन्होंने, और मीटिंग कहाँ पे हुई, एट द वॉज हेल्ड पेशवेंट कॉन्फ्रेंस, सॉरी कॉन्फ्रेंस, वही मीटिंग हुई, वॉज हेल्ड ऑन रे मार्केट इन पुणे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कॉर्पोरेट ऑफिसर हैं, क्लर्क हैं, मनी लैंडर्स हैं, वो लोग हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं. कंट्रीब्यूट ऑफ शाने जी गुरु जी. पांडुरंग सादाशिव शाने, पांडुरंग सादाशिव शाने, पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलरली मतलब फेमस था, नोन एज अ शाने गुरुजी, played an important role in a Peshwant movement. Thought teacher by professionally, he was devoted follower of a गांधी जी. गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे. He had dedicated his entire life in the service of Maharashtra. In 1939, the Khandesh region was devastated due to the heavy rainfall. He threw the reason and the demand the tax exploitation of a land. He took great effort to make फजीपुर सीज़न ऑफ अ कांग्रेस सक्सेसफुल. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ, ये जो कंट्रीब्यूट ऑफ साने गुरु जी थे, शाने गुरु जी बहुत नाम से फेमस थे, और वो गांधी जी को बहुत बड़े फॉलो करते थे. ये इन्होंने भी अपना साथ दिया था 1939 में. ठीक है ना. सेनापति भात एंड मुसली सत्याग्रह. इन 1921 सेनापति सेनापति भपात लॉन्च द मुल्शी सत्याग्रह. अभी ये लोग ने नया सत्याग्रह बनाया 1921 में, जिसमें सेनापति भात लॉन्च हुआ है मुल्शी सत्याग्रह, टू सेव द लैंड ऑफ कल्टिवेटर एंड द सुप्रियर अंडर द मुल्शी धाम. अब ये लोग ने मुल्शी धाम के यहाँ पे ये चालू किया था. ही डिमांडेड एज लॉज द पेशवेंट शुड बी कॉम्बिडेटेड विथ मनी एट लीस्ट. इन 1923 एट लास्ट, आखिरी में, सबसे आखिरी में जाके 1923 में, ऑल द डिमांड्स ऑफ द पेशवेंट वेयर एग्रीड अपॉन. लास्ट में ये एग्री हो चुकी थी.
डॉक्टर बी राव अंबेडकर एंड पेशवेंत मूवमेंट। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। ये हो गई है 40 मिनट की वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो होती है लेक्चर को बोरिंग।